आज सभी का आज की सायंकाल की सभा में मैं अमृतांशु वाजपेयी आपका होस्ट स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। On this evening, at the outset, I extend a very warm welcome to all the esteemed audiences, all the guests, the speaker of the day, taking it as an opportunity on behalf of Sky Foundation, Sky Amateur Astronomers Club, WIPNET Clubs of Ignited Minds, Women Led Science Club, and Sky Foundation and EduSTEM Initiative Global. So, today, as we all know, that we are celebrating the National Technology Day. So, in concordance with the day, the theme of the day, we have planned a talk that deals not only with astronomy, but a practical application of an astronomical terminology as well. We all know that in the present day scenario, the demand of energy is increasing rapidly. ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आपको हर कार्य को करने के लिए एनर्जी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एवरी नूक एंड पीस एंड कॉर्नर ऑफ योर लाइफ यू नीड एनर्जी टू डू वर्क, be it in the form of light energy, be it in the form of electricity, any rendition of energy, and also be it in the form of, you can say, the fossil fuels and all. You need some sort of energy to run the cogwheels of your life. आपको अपने जीवन की शैली को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि ये जो ऊर्जा के स्रोत जिनका हम दोहन करते चले जा रहे हैं, ये कब तक चलेंगे? तो तकनीक के इस दौर में आज की मांग है, समय की मांग है कि हम अपने इस ऊर्जा की जो गतिशीलता है इसको अनंत काल तक बनाए रखने के लिए नए नए स्रोतों का संवर्धन करें और अपने क्रियाकलापों का परिशीलन करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करें। आगे की ओर आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसी हेरिटेज को छोड़कर जाएं, एक ऐसी विरासत को छोड़कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिन्होंने न केवल अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अनुसंधान किया बल्कि आने वालों के लिए भी कुछ छोड़कर गए। सो as far as the present day scenario we are concerned, there are a lot of problems that we are facing with in the form of global warming, ozone layer depletion and all. So we cannot really rely on fossil fuels as this is the solution, as the major solution, because these fossil fuels they are limited in quantity. जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, क्रूड ऑयल जिसकी आजकल हम लोग काफी चर्चा देखते हैं, $0 पर बैरल तक चला गया था अमेरिकन मार्केट्स में, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही वो अवेलेबल है, उनकी एक सीमा है। तो जब वो सीमा के परे क्या, तो जब हम देखते हैं तो अलग अक्षय ऊर्जा के अन्य अनेकानेक स्रोत जो हैं हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिसको हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो वन ऑफ दोज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी। एंड बिकॉज टुडे why we have chosen the theme of solar radiation and different types of the solar energy systems, because today is the National Technology Day, and what we did today was the Pokhran nuclear, that is the Pokhran nuclear test. And so as a matter of fact, why I am saying is because the entire solar energy that we will be learning is an outcome of that is of the nuclear fusion only. So we have tried to relate the theme behind the technology day with the today's work. So here I would just like to introduce the speaker for the day, Mr. Anurag Tiwari. He is an expert in the renewable energy. वो अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में एक मतलब जाना माना एक चेहरा है। He is a former intern of National Institute of Solar Energy. उन्होंने National Institute of Solar Energy में एक बहुत internship का काम किया है। He is a gold medalist in the post graduation of his specialization from the solar energy, and also at present he is an in charge senior educator of the project Science Bus, which is a joint project of Council of Science and Technology Uttar Pradesh and IIT Kanpur. So we are very much fortunate to have an expert in the form of Anurag Tiwari ji today, who will be addressing us for the matter on behalf of this common umbrella of Vigyan Prasad Network of Clubs, EduSTEM Initiative Global, and also not to forget the umbrella of Sky Foundation. And again, I would like to address all of you as a good morning. Yesterday, when I announced it as a good morning, then there were a few questions raised to me. Then I would like to clarify, for the astronomers, never comes the night, because sun is always there over the horizon in any part of the world, and we are enjoying 24 hours of sunlight, be not in India, but somewhere else. So it is a good morning for all the astronomers. Yes, good evening for India. So
without wasting any time, and after all such sort of a formal introduction, I would just like to invite up on the platform the speaker for the day, Mr. Anurag Tiwari. बिना समय गंवाए अब मैं आज के अपने वक्ता श्री अनुराग तिवारी जी को सादर निवेदन करता हूं कि वो आए और मंच पर अपने अभिभाषण को देकर के हम सभी को अनुग्रहित कर अपने सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के प्रकाश से हम सभी को आलोकित करें। अगले शब्द, अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो हमारे प्रखर वक्ता की होगी, अनुराग तिवारी जी। और इससे पहले वो शुरुआत करें, मैं आप सभी को एक सचेतक देना चाहूंगा। आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग टू योर माइंड, दैट इज कॉन्शियस, दैट there are two icons in the name of Anurag Tiwari. So you just have to pin up the arrow pointing upwards, which means the presentation screen. So there would not be any hiccup. You will also enjoy seeing, and Tiwari ji will also enjoy presenting. So over to you, Tiwari. Thanks a lot for gracing the occasion. Over to you. थैंक यू अमृतांशु वाजपेयी सर। तो आज सबसे पहले तो हम सभी को जो है बधाई देंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर। और यहाँ पर हमारी जो आज की थीम है वो हम इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में देखेंगे, और हमने इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखा है। तो इसमें जो है मोस्टली बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कई लोग मतलब कई जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो सब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो हमारे जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है ये है एपरेंट मोशन ऑफ द सन। हम यहाँ पर सन की एपरेंट मोशन को देखेंगे कि वो किस तरह से, कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि जैसे अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो जो है अर्थ मोशन करती है सन के चारों तरफ, लेकिन सन कोई भी मोशन नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। लेकिन हम जब टेक्निकल टर्म में आते हैं, सोलर की फील्ड में आते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ हमारी स्टिल है और सन मूव कर रहा है, क्योंकि तभी हम कैलकुलेशंस को बेहतर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे सन पाथ, जो हमारा सन हमें जाता हुआ दिखाई देता है, वो कैसे चेंज होता है। थर्ड में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल बेस्ड सिस्टम्स, एंड फोर्थ सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन एंड पीवी सिस्टम्स। तो ये सभी चीज़ें आप जब सेशन में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो हमने ये व्यू लिया है कि ये सोलर सिस्टम कितना हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो सबसे पहले जो फोटो है वो लोकल सुपर क्लस्टर की है, कि उससे उसमें से एक डॉट को हमने जूम किया है, वो हमारा लोकल ग्रुप है। फिर उसमें से हमने एक डॉट को जूम किया है, वो हमारी मिल्की वे है। फिर उस मिल्की वे में जो इतनी सी रोशनी आपको दिखाई दे रही है, उसमें से हमने एक डॉट को लिया है, और वो है हमारा सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम में से हमने एक तीसरे नंबर पे मौजूद एक छोटे से डॉट जैसे प्लैनेट को लिया है, जो है हमारी दुनिया। तो ये दुनिया जो आपको इतनी बड़ी दिखाई देती है, ये यूनिवर्स में कितनी छोटी है, आप इस फोटो से अंदाजा ले सकते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ पे हम आ गए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले जो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है, जितनी भी हम अर्थ पे एक्टिविटीज देखते हैं वो सन की वजह से ही पॉसिबल है। तो सन में जो एनर्जी आते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। इस वजह से ये कॉन्टिन्यू जो है बर्न करता रहता है। और सन से जो हमको एनर्जी मिलती है वो बेसिकली, अगर आप आसान शब्दों में कहें तो वो हीट और लाइट के फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। तो अगर हम अर्थ को समझें तो अर्थ हमारी जो है वो, हम इसको 20 से अगर दो हिस्से में बांट दें तो ये हमें दो पार्ट में मिलती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो इंडिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और मोस्टली 90% जो कंट्री हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, और सिर्फ 10% करीब कंट्रियां हैं जो साउदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं। तो जो सोलर सिस्टम्स है हमारे, अब हम उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने एक छोटी सी चीज रखी है कि जो सन पाथ हमारा होता है, सन होता है, उसकी वजह से हमारे सीजन्स भी चेंज होते हैं। तो पहले पॉइंट में ये है कि अर्थ का जो हमारा ऑर्बिट है ये परफेक्टली सर्किल नहीं है, ये इलिप्स है। और इसी वजह से क्या होता है, अर्थ कभी सन के बहुत ज्यादा पास होती है और कभी जो है वो दूर हो जाती है। और ये सबसे पास करीब करीब 3 जनवरी को होती है, और ये दूर होती है 4 जुलाई को। बट मोस्टली लोग ये देखेंगे कि ये जब सबसे पास है, बट फिर भी उस समय हमारे यहाँ विंटर का सीजन होता है। लेकिन क्योंकि अगर हम हीट के लॉस को पढ़ें तो अर्थ जितने ज्यादा सन के क्लोज होनी चाहिए उतना ज्यादा यहाँ पर गर्म होना चाहिए। लेकिन तो अर्थ में जो सीजन है या गर्मी या सर्दी है जो चेंज होता है, वो इसके टिल्ट की वजह से होता है। क्योंकि ये जो टिल्ट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 23.5 डिग्री करीब करीब जो है टिल्ट है अपनी एक्सिस से। तो सबसे पहली जगह पे आप देखेंगे
तो इसमें जो है सन रेज हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ रही हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है। इसलिए जो है इस समय विंटर के समय हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, क्योंकि सन रेज यहाँ पर जो है वो सीधी नहीं पड़ती हैं। इधर सेकंड में आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सभी जगह ऑलमोस्ट बराबर सन रेज पड़ती हैं। फिर थर्ड में आपको समर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस बार जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ रही हैं हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए इस समय जब अर्थ अपने रिवॉल्यूशन के इस पॉइंट पे होता है तो हम यहाँ पर गर्मी का एहसास करते हैं। नेक्स्ट है फॉल। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इक्विनॉक्स डेज और समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस इसी वजह से होता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि गर्मी में आप लोग को तो पता है कि सन रेज तिरछी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो गर्मी या सर्दी हो रही है। बट ये ऐसा होता क्यों है, इस डायग्राम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहले वाले में आप देखेंगे तो एक सन रेज आ रही है जो 1 मीटर एरिया स्क्वायर में जो एनर्जी फॉल हो रही है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो रही है। दूसरे में आप देखेंगे कि वही 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी 2 मीटर स्क्वायर के एरिया में फॉल हो रही है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पर यूनिट एनर्जी जो है वो चेंज हो जा रही है। पहले में उतनी ही एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर में है, दूसरे में उतनी ही एनर्जी 2 मीटर स्क्वायर में है। यानी कि जो अर्थ के सरफेस पे पड़ने वाली पर यूनिट स्क्वायर एनर्जी है वो कम हो गई है। इसी वजह से जब रेज तिरछी आती हैं तो जो है वहां पर उतना ज्यादा वो गर्म नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कॉसाइन फॉर्मूला यहाँ काम करने लगता है। क्योंकि ये जो तिरछी सनरेज आ रही हैं इनका सिर्फ कॉस थीटा फैक्टर ही धरती एब्जॉर्ब कर पाती है। और बेहतर तरीके से देखने के लिए हम अगले पे जाएंगे। अगर आप कई सारी जो है पेंसिल्स को एक साथ पकड़ें और उनको एक स्क्वायर इंच पे मारे तो वो डॉट कम एरिया उतने एरिया में बन जाते हैं। बट वही अगर आप तिरछी उसको डालते हैं तो वो काफी एरिया कवर करती है। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल से आपको ये चीज काफी समझ में आ गई होगी। तो इसी वजह से क्या होता है, जब सन रेज हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस समय सीधी पड़ रही होती है उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में हम विंटर महसूस करते हैं। और जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सन में अगर हम कोई भी सोलर सिस्टम लगाते हैं तो सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये हमको बहुत पता होना जरूरी होता है। और ये टर्म होता है हमारा डेक्लिनेशन एंगल। क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ जो है 23.45 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। लेकिन क्या होता है कि हमें अर्थ झुकी हुई नहीं दिखाई देती क्योंकि हम अर्थ पे ही हैं। लेकिन अगर हम सन को देखेंगे तो हम उसके डेक्लिनेशन का पता कर सकते हैं। The declination angle is the angle made by line joining the center of the sun and the earth with the projection of this line on the equatorial plane। अगर आप अर्थ के सेंटर से सन को लाइन ज्वाइन करें तो इक्विलेटरल प्लेन के साथ वो जो एंगल बनाता है वही हमारा जो है डेक्लिनेशन एंगल होता है। तो ये क्या होता है, ये वेरी कहां से कहां तक करता है। ये 23.45 पहली पिक्चर में आप देखेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अप है। इस समय ये +23.45 है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री पर है, इस समय इक्वेटर पर है। और थर्ड में आप देखेंगे तो ये अब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला गया है। तो इस समय ये जो एंगल है ये 23.45 माइनस में है। बट आप किसी भी पार्टिकुलर डे के लिए भी डेक्लिनेशन एंगल निकाल सकते हैं ऊपर फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पर जो n आपको वैल्यू दिख रही होगी 284 प्लस n, यहाँ n आप किसी पार्टिकुलर डे को रख सकते हैं। 1 जनवरी से हम डे नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आप इस वैल्यू में पुट करके किसी भी पार्टिकुलर डे के लिए डेक्लिनेशन एंगल निकाल सकते हैं। तो किसी भी सीजन में हमें अपने सिस्टम्स को किस डायरेक्शन में रखना है और कितना टिल्ट पे उसको रखना है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम वो चीज चेक कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सन पाथ की। जैसा हमने अपने सेशन के स्टार्ट में रखा था कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे सन पाथ किस तरह से चेंज होता है, अब हम उसको देखेंगे। तो बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आते हैं, बचपन में भी पढ़ा होता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। बट ये ट्रू नहीं है। सन ईस्ट परफेक्टली सिर्फ साल में 2 दिन निकलता है। ठीक है, अगर हम अपनी लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सन जो है वो जून 21 का एक डायग्राम दिखाया है और दिसंबर 21 का दिखाया है। जून 21 में हमारे एकदम ओवरहेड है सन, और दिसंबर 21 में ये काफी जो है साउथ डायरेक्शन में है। तो अगर लखनऊ लोकेशन की बात करें जिसका कि लैटिट्यूड 26.8 डिग्री है, तो वहां पे सन जो है वो हमेशा साउथ में रहता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको जो है साउथ
डायरेक्शन में ही दिखाई देगा। इसीलिए हम अपने पैनल्स को या जो भी सिस्टम्स को टिल्ट करते हैं वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में करते हैं। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हम उसको नॉर्थ डायरेक्शन में टिल्ट करेंगे। तो सन जो है, अगले जो डायग्राम में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड के लिए सन पाथ दिखाएंगे, वहां से आप इसको समझ जाएंगे कि सन कैसे कैसे जो है चेंज होता है हमारे स्काई में। ये हमने दिखाया है आपको 28 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के लिए। लाइनिंग्स बहुत छोटी हैं बट फिर भी उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएंगी। तो ये जो सर्किल जैसा है ये आपका स्काई जो आप देख रहे हो, ठीक है, और बीच में जो डॉट है, जो सेंटर है उसका, वहां पे आप खड़े हो। अगर आप सबसे पहली लाइन को देखो, जो सबसे पहला सर्किल है जिसके लास्ट में दिसंबर 21 लिखा हुआ है, ये जो सर्किल है ये सनपाथ दिखा रहा है 21 दिसंबर के लिए। और सबसे लास्ट वाला जो सर्किल है वो जून 21 है। ये जो सनपाथ है ये आपका दिखा रहा है सबसे छोटा सर्किल है ये। तो यहां पे हम देखेंगे कि साउदर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें, हम नॉर्दर्न में हैं लेकिन हम अभी फिलहाल साउदर्न की बात कर रहे हैं। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में हमारा जो मैक्सिमम जो सर्किल है, कई सारे सर्किल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम सर्किल का जो आर्क जो बन रही है वो 21 दिसंबर की बन रही है, और सबसे छोटी आर्क जो है वो 21 जून की बन रही है। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। ये सन पाथ आप कुछ फॉर्मूलों की मदद से अपने आसानी से खुद से भी बना सकते हैं। और इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग अलग जो है डेज के लिए किस किस तरह से चेंज होता है। और ये जो 10 डिग्री 0 डिग्री दिया है ये एल्टीट्यूड दिया है। ये जो सर्किल्स है ये सन का पाथ दिखा रहे हैं, यानी कि जो बीच में सेंटर है वहां पे आप खड़े हो और आप आसमान की तरफ ऊपर करके देख रहे हो, तो उस तरह से सर्किल में आपको सन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम 21 दिसंबर की बात करें तो आप देखेंगे कि सन जो है वो ईस्ट से कितना नीचे निकल रहा है, यानी ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन में निकल रहा है। और 21 जून की बात करें तो ये ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन में निकल रहा है। सिर्फ ईस्ट में निकल रहा है ये मार्च 21 और सितंबर 21 में, जब हमारे इक्विनॉक्स डेज होते हैं। अदरवाइज सन कभी भी ईस्ट डायरेक्शन से परफेक्टली नहीं निकलता है। इसी हिसाब से जो है हम अपने सिस्टम्स को अरेंज करते हैं। अब जैसे ये 28 डिग्री साउथ का है वैसा ही हमने 29 डिग्री नॉर्थ ले लिया, जस्ट इसी का रिवर्स है। वो जो चीज वहां पर 21 जून है वो चीज यहां पर 21 दिसंबर हो गई है और सभी चीजें सेम रही हैं। ठीक है, अब अगला हम एक और सनपाथ हमने लिया है, ये है 49 डिग्री लैटिट्यूड पे। 49 डिग्री लैटिट्यूड में क्या है, आप देख रहे होंगे कि सन जो है वो काफी बड़े बड़े सर्कल्स बना रहा है। पहला वाला सर्कल बहुत बड़ा है, यानी इससे क्या शो होता है, जैसे जैसे हम अर्थ में हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे जो डे लेंथ है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं जो पहला वाला सर्कल है ये हमारे 28 डिग्री लैटिट्यूड से काफी ज्यादा बड़े आर्क का है। तो यहां पर जो आप देखेंगे, जैसे कुछ हमारे इंग्लैंड वगैरह ये सब देश हो गए हैं हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो इनमें नाइट कभी कभी क्या होती है, काफी लेट होती है। कुछ कुछ जगह तो रात के 10 बजे भी नाइट होती है। और पोल्स पे चले जाए तो वहां सीधे सीधे 6 मंथ का डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे जो हमारा सन पाथ है वो हाई सर्किल बनाता जाएगा। यानी सन आपको, अगर बेसिकली आप पोल पे खड़े हैं तो सन आपको आसमान में ही गोल गोल चक्कर काटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पोल पे क्या होता है, ये जो सर्किल आधा आधा बन रहा है ये पूरा परफेक्टली सर्किल बन जाता है और काफी टाइम बाद जो है 6 महीने तक वहां दिन रहता है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड की हम बात करेंगे। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा गर्म पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सन आप देखेंगे तो सन पाथ यहाँ पर जो सन है वो नॉर्थ में भी जा रहा है और साउथ में भी जा रहा है। क्योंकि सन जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोशन करता रहता है 23.45 प्लस से 23.45 माइनस तक। तो 0 डिग्री हम अगर लैटिट्यूड की बात करें तो वहां वो ऊपर भी जाता है, नॉर्थ में भी जाता है और नीचे साउथ में भी आता है। तो यहाँ पर आपको कई सारे सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे और इस सनपाथ में हम परफेक्टली ये भी निकाल सकते हैं कि कितने बजे हमारा सन कितने एल्टीट्यूड पे होगा। तो ये मेथड है जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था और ये आप खुद से भी आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजीली जो है हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये तो अभी आपने डिफरेंट डिफरेंट देखे। अगर हम इसका एक कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर भी एक बनाया है बहुत शॉर्ट में। 0 डिग्री में आप देखेंगे सबसे नीचे जो डायग्राम है वो 0 डिग्री का है। तो 0 डिग्री में सन जो है एक एक सर्किल जो है नीचे की तरफ बन रहा है साउथ की तरफ और एक सर्किल ऊपर बन रहा है। लेकिन अगर आप 0 से 20 में आ जाते हैं
तो धीरे धीरे जो सन है अब वो क्या हो रहा है कि प्लस जो है नीचे की तरफ आता जा रहा है, यानी कि अब ये जो सन है हमारा पूरा पूरा जो है ये साउथ की तरफ आता जा रहा है। इसी तरह से हम माइनस वाले में भी देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर नॉर्थ में हाई लैटिट्यूड या साउथ में हाई लैटिट्यूड पे जाते जाते हैं, सन पाथ जो है वो किस तरह से चेंज होता है, वो हाई सर्किल स्काई में बनाता है और काफी गोल लंबा चक्कर काटता हुआ वो अस्त होता है दूसरी दिशा में जाके। ठीक है, तो इन समझ सकते हैं हम इन डायग्राम से, और परफेक्टली हमको एक ही दिन मिलता है जब वो ईस्ट से राइज होता है। तो ये बात थी हमारे सन पाथ की। अब हम लोग आते हैं अपने सोलर सिस्टम्स पे। तो सन बेसिकली हमने जैसा पहले बताया था कि सन हमें दो फॉर्म में एनर्जी देता है, हीट एंड लाइट। हीट में अगर हम देखें तो कई सारे थर्मल एप्लीकेशंस आते हैं, और लाइट में कई सारे जैसे पीवी और लाइटनिंग एप्लीकेशन ये सभी आते हैं। आप लोग ध्यान से सेशन सुनिएगा, हमने लास्ट में 3 क्वेश्चन रखे हैं, तो आप लोग, हम लास्ट के सेशन में 3 क्वेश्चन वो पूछेंगे, तो आप उनका भी आंसर करिएगा मैसेज बॉक्स में जाके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अब हम बात करेंगे अपने सोलर थर्मल, यानी सोलर हमें दो फॉर्म में एनर्जी देता है, हीट और लाइट। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हीट फॉर्म में हम उसका कैसे यूज करते हैं। तो थर्मल जो सिस्टम होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक विद ऑप्टिकल कंसंट्रेशन और एक विदाउट ऑप्टिकल कंसंट्रेशन। तो इनका यूज क्या होता है, सोलर थर्मल का यूज करके हम अपने पानी को गर्म कर सकते हैं। स्पेस हीटिंग, जो जैसे ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज हैं या सर्दियों के समय आप जो है इसकी मदद से अपने घर को गर्म रख सकते हैं। इसके अलावा स्पेस कूलिंग भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होगी कि सोलर से एसी भी चलता है। सब लोग सोचते हैं सोलर से सिर्फ हीट वाले इक्विपमेंट चलते हैं, लेकिन सोलर थर्मल की मदद से हम रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर जनरेशन। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स इंडिया में इंस्टॉल हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है। डिस्टिलेशन, ड्राइंग एंड कुकिंग, तो ये सब इसमें से कुछ कुछ हमने सिस्टम्स जो मेन हैं जो ज़्यादा यूज़ किया थे वो हमने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि अगर हम सबको लेते तो सेशन बहुत लंबा हो जाता। सबसे पहला जो सिंपल है वो लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन दिख रही होगी, एक कांच की, ठीक है। उसके बाद उसकी 2 लेयर हैं, फिर लास्ट में एक ब्लैक कलर का जो है दिख रहा होगा, ब्लैक अब्जॉर्बर प्लेट। उसके नीचे ब्लू कलर के कुछ सर्किल जैसे दिखाई दे रहे होंगे, और नीचे थर्मल इंसुलेशन है। तो जब सोलर रेडिएशन इस पे फॉल होता है तो इस ग्लास से वो नीचे जाता है और एब्जॉर्बर में जाकर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये एब्जॉर्बर जो नीचे कॉपर ट्यूब लगे हैं उनको हीट ट्रांसफर कर देते हैं। और कॉपर ट्यूब के अंदर जो हमारा वाटर फ्लो होता रहता है, तो इस वाटर फ्लो में क्या होता है कि सारा का सारा पानी जो है हमारा सोलर रेडिएशन से गर्म हो जाता है। तो ये लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इसमें बहुत मूविंग पार्ट की कम जरूरत होती है, और ये जो है सोलर रेडिएशन इसके लिए डायरेक्ट नहीं चाहिए, ये डिफ्यूज रेडिएशन में भी काम कर लेता है। और इससे हम पानी को करीब करीब 40 से लेके 100 डिग्री की रेंज में वाटर को हम अपने गर्म कर सकते हैं इससे आसानी से। इसमें हमने ऊपर ट्रांसपेरेंट स्क्रीन इसलिए लगाई है ताकि हम कन्वेक्टिव लॉसेस को रोक सकें, और इसके अलावा जो कॉपर ट्यूब या ब्लैक अब्जॉर्बर से जो री रेडिएशन हो रहा होता है, यानी वापस जो रेडिएशन जा रहा होता है, उसको भी ये रोकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट स्क्रीन हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगा देंगे तो ये लाइट की ऑप्टिकल एफिशिएंसी को कम कर देगा, मतलब जितनी लाइट जानी चाहिए उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो हम एक ग्लास स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। उसमें हमने क्या था कि ग्लास के बीच में हमारी एयर थी, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने उसमें एयर को हटा दिया है। एयर को हटाने से क्या होता है कि हमारे कन्वेक्शन से जो लॉसेस हो रहे होते हैं वो जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हीट लॉस बाय कन्वेक्शन टू द सराउंडिंग इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंटली ड्यू टू वैक्यूम, हेंस इट हैज इम्प्रूव एफिशिएंसी। और इसका फायदा भी हमको सीधे सीधे मिलता है। आप देख सकते हैं कि इससे हम जो टेम्परेचर रेंज है वो 90 से लेके 130 डिग्री तक हम इसको गर्म कर सकते हैं। ये कॉमर्शियली यूज़ होता है, आपने अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में या जहाँ भी ये सोलर थर्मल सिस्टम, ये ज़्यादातर हमारे जो पॉपुलर हैं वो इवैक्यूएटेड हैं। ये है हमारा सोलर एयर हीटर। तो जो हमने आपको बताया था स्पेस हीटिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो आप देखेंगे कि यहाँ से नीचे एयर इन हो रही है और एयर आउट है। जैसे हमने दिखाया फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये सिंपल वही है, बस इसमें क्या है कि हमने वाटर की जगह एयर को फ्लो करा दिया है। तो यहाँ पर एब्जॉर्बर प्लेट है, उससे एयर हीट होती है, और हीट होने के बाद उसको हम अपने घर में स्पेस हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगले बढ़ेंगे।
स्पेस हीटिंग बाय पैसिव मेथड, यहाँ पे हम लोग क्या है पैसिव मेथड को यूज करते हैं। तो इसकी मदद से क्या होता है कि हम अपने घर को गर्म, इस पे आपने ट्रॉम्बे वॉल वगैरह पढ़े होंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक ग्लास है, उसमें एक सी वेंट दिया हुआ है, उसके बाद एक स्टोरेज वॉल है जिसमें ए और बी वेंट है, फिर जो है ये डी वेंट दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमको अपना जो घर को जब गर्म करना होता है तो हम ए और बी दोनों वेंट खोल देते हैं। तो यहाँ से सोलर रेडिएशन अंदर जाता है और क्या होता है, ए वाले से गर्म हवा अंदर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ए वाले से हवा जो है वो अंदर जाती है और बी वाले से ठंडी हवा नीचे आ जाती है और ये सी से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा स्पेस है, जो कमरा है, वो हमारा गर्म हो जाता है। अब अगर हमको जो है इसको ठंडा करना है तो हम क्या कर देते हैं कि ए और बी वेंट को बंद कर देते हैं, और जो पेड़ उधर आपको लगा दिखाई दे रहा होगा वो नॉर्थ साइड है, और हम जानते हैं जो सन है हमारा साउथ में रहता है, वो नॉर्थ में नहीं रहता है। तो जब हवा उधर से आती है तो वो उधर से ग्रीनरी से टकरा के ठंडी हवा हमारे डी वेंट से अंदर आ जाती है, और जो गर्म हवा है वो ए वेंट से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं अपने इसमें। अब हमने आपको बताया था दो टाइप के मेथड, एक था विदाउट कंसंट्रेशन और एक था विद कंसंट्रेशन। तो ये वाला जो मेथड है, अब हम जाएंगे सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। इसमें क्या होता है कि सन रेडिएशन को हम कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेट करने का मतलब है उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जब हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उस वक्त जो है ये यूज किया जाता है। इसमें आप एक शीट देख रहे होंगे, ये शीट टिन की एल्यूमिनियम की होती है। तो इसमें क्या होता है, जब सन रेज, ये पैराबोलिक फॉर्म में है, जब सन रेज इस पे हिट करती है तो सारी की सारी सन रेज, एक आपको ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये एब्जॉर्बर ट्यूब है जिसपे हम जो है ब्लैक कलर का इसको कर देते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सके। तो इसमें जो है वो आके सारी की सारी रेडिएशन यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती है, और जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको हम 110 से लेके 200 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। अब सन, आप लोग जानते हैं कि सन दो डायरेक्शन में मोशन करता है, पहला ईस्ट टू वेस्ट, दूसरा नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें क्या है कि ये एक जगह से फिक्स है, हमको सिर्फ इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना होता है, यानी कि ये हमारा सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग है। बस हमें सन की नॉर्थ और साउथ वाली मूवमेंट देखनी होती है। नॉर्थ और साउथ मूवमेंट आसान शब्दों में बोले तो जिससे सीजन चेंज होता है। तो पिछला वाला जो आपने देखा था वो क्या था, लाइन फोकसिंग था, उसमें हम एक लाइन पर फोकस कर रहे थे, ये पॉइंट फोकसिंग है। ये हमारा पैराबोलॉइड कंसंट्रेटिंग कलेक्टर है, और इस पॉइंट फोकस की वजह से क्या होता है, एक बड़े से एरिया में सारी की सारी लाइट को, आप देख रहे होंगे एक रिसीवर है ब्लैक कलर का, उस पे हम जो है फॉल कर देते हैं, और इससे हम वाटर को 400 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कुकिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर हम इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं कि जैसे अगर आपको कम टेम्परेचर चाहिए तो आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि वो सबसे इफिशियंट होता है, और हाई टेम्परेचर के लिए हम पैराबोलिक डिश को लेते हैं। सोलर स्टिल, ये क्या होता है, जैसे वाटर में हमारा जो ब्रैकिश वाटर या सेलाइन वाटर होता है, जिसमें हमारा जो सॉल्ट मिक्स होता है, उसको क्या होता है हम रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक स्लोपिंग ट्रांसपेरेंट कवर आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, वो यूज़ किया जाता है। तो जब इस ग्लास से हमारा सोलर रेडिएशन अंदर जाता है तो एब्जॉर्बर प्लेट से ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद जो है यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद वो जो कांच का जो तिरछा सा कांच लगा हुआ है उस पे जाके वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही वो वेपर वहां पे पहुंचती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, और वो क्या होती हैं, वो स्लोप की वजह से वहां पर जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं, और जो डिस्टिलेट चैनल है वहां से हम विदाउट सॉल्ट वाला वाटर, विदाउट, हम फ्रेश वाटर वहां से आसानी से पा लेते हैं। तो ये काफ़ी टेक्निक है जो पहले के समय में यूज़ होती थी पानी को साफ करने के लिए। तो इसमें जो है हम 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर को 30 से 35% इफिशियंसी से हम अच्छे सनी डेज में आसानी से वाटर को पा सकते हैं। ये हमने उसका एक डायग्राम दिखाया कि रियल में कैसा दिखता है। तो यहाँ से हम क्या होता है, पानी नीचे की तरफ आता है और वहाँ से पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। ये काफ़ी पहले समय पे यूज़ होता था। ये हमारा बॉक्स टाइप सोलर कुकर है। इसमें क्या होता है कि ये अब बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक बूस्टर ऊपर की तरफ लगा हुआ है और एक ट्रांसपेरेंट कवर है। यहाँ से सनलाइट आती है और नीचे पॉट रखे रहते हैं, ये बॉक्स की तरह है, अंदर पॉट रखे रहते हैं जिसमें चावल या कुछ भी जो हमें उबालना है वो हम रख देते हैं, और उसके बाद रेडिएशन से वो गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं और बार बार आपको धूप में आके देखना पड़ता है
उसको एडजस्ट करना पड़ता है बार बार सन की डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा सा आजकल लोग जो चाहते हैं आसानी से हर चीज़ हो, तो उस में ये कन्वीनियंट नहीं बैठता है, लेकिन इससे भी हम अच्छा टेम्परेचर पा सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है शेफलर कुकर। इसमें क्या होता है कि कांच के कई छोटे छोटे सेक्शंस यूज़ करे जाते हैं। अगर आप उस पे देखेंगे, कई सारे छोटे छोटे सेक्शन यूज़ करे गए और यहाँ से सारी लाइट एक जगह डाली जाती है। और सबसे बेहतर चीज़ इसकी क्या है कि इसमें आपको किचन के अंदर आप अपना खाना बना सकते हैं। ये उसी हिसाब से इसमें ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ये उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है और लाइट का फोकस सीधे आपकी जो वॉल्स के अंदर जो कुकिंग पॉट रखा हुआ है, सीधे उसी पर ये जो है लाइट को फोकस कर देता है। तो आपको क्या होता है कि बाहर बार बार धूप में नहीं जाना पड़ता है, धूप में खड़े नहीं होना पड़ता है और ये अपना काम बाहर से ही करता रहता है। इसके अलावा ये इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा अगर किसी का यूज़ हो रहा है तो वो शेफलर कुकर का यूज़ हो रहा है। ये हमने एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, तो ये शेफलर जो हमारे पैराबोलिक मिरर हैं, इसके ये मुनि सेवा आश्रम का है। जो क्या है कि जहाँ से हमने जो लगाया गया है प्लांट, ये 1 मेगावाट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, थर्मल एनर्जी से। जी बहुत बड़ा प्लांट है और इतने बड़े स्केल पे यहाँ से सिर्फ सनलाइट को फोकस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, बिना किसी साउंड के और बिना ही किसी फ्यूल के कंजम्पशन के। ये सेंट्रल पावर टावर है। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में भी इस तरह का एक लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कई सारे मिरर्स से एक साथ लाइट को एक चिमनी जैसी बनी हुई है उस पर डाला जाता है। ये हमने कैलिफोर्निया का लिया हुआ है और ये बहुत इसमें से सुपर हीटेड स्टीम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था। और इसमें क्या है, सर्कुलर शेप में जो है वो मिरर्स लगे हुए हैं और जैसे जैसे सन मूव करता जाता है ये मिरर्स बारी बारी से अपना काम करते जाते हैं और एब्जॉर्बर पे लाइट को फोकस करते जाते हैं। अब हम आते हैं सोलर जो लाइट का यूज़ करता है। तो ये हमारा सोलर सेल है। सोलर थर्मल सिस्टम सिर्फ इंडस्ट्रियल पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं, बट पीवी पैनल्स जो हैं ये आजकल सबसे बड़ी जिनकी डिमांड है वो पीवी पैनल्स की है। तो पीवी पैनल्स जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं और बेसिकली सेल क्या होती है, जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करती है। जैसे ही सनलाइट इस पे इंसिडेंट होती है एक डीसी करंट फ्लो होने लगता है। सोलर सेल जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। तो ये जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल है इसमें ये पहला डायग्राम बना हुआ है पॉलीक्रिस्टलाइन। बेसिकली जो हम लोग के घरों में यूज़ होते हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो एक सेल करीब 0.5 से 0.6 वोल्टेज जनरेट करता है और करीब 8 एम्पियर जो है करंट जनरेट करता है। अगर आप इनको सिंपली इंटू करेंगे तो आप इससे वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो इस समय जोड़ दिया जा रहा है वो हमारे सोलर पैनल्स के, क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन करता है लाइट का इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो ये हमारा अगला जो डायग्राम है ये फोटोवोल्टाइक का है, जिसमें हमने सोलर सेल से आपको पूरा दिखाया है कि सोलर सेल से पहले हमने उनको जोड़ के एक मॉड्यूल बनाया है और वो कई सारे मॉड्यूल जब मिलते हैं तो एक सोलर पीवी एरे बनता है, जिससे हम एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब हम आपको सोलर से बेस्ड सिस्टम्स दिखाएंगे। ये सबसे बेसिक सिस्टम है जो जैसे हमारे गांव में ये हमें सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमें अपने खेतों में यूज़ करना है जहाँ पे हमको डायरेक्ट सनलाइट अक्सर मिलती रहती है, क्योंकि वहाँ भी कोई बिल्डिंग नहीं होती है या कोई इस तरह की इंटरप्शंस नहीं होती हैं। तो इसमें सोलर पैनल से लाइट जो है पड़ती है और डायरेक्ट उससे डीसी मोटर, यानी कोई भी हमको उसमें इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो डीसी मोटर से डायरेक्ट जो है पानी को खेतों में भेज देता है। ये एक और सिस्टम है जिसमें हम क्या है सोलर पैनल्स की मदद से अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर की मदद से यहाँ पे हमने दिखाया है ये बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं, ये भी सोलर का यूज़ होता है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखेगा कि यहाँ पर हम क्या है, ये हमारा बेसिकली छोटा सा पीवी प्लांट है जिसमें हम क्या है कि उसको अब हम क्या है सोलर से जनरेट होने वाली डीसी करंट को एसी में बदल रहे हैं एक इन्वर्टर की मदद से, और इसकी मदद से हम अपने घर के इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिड है। हाइब्रिड सिस्टम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सन जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, तो उस समय हमें एक बैकअप चाहिए होता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रन करने के लिए। तो बेसिकली हम हाइब्रिड के तौर पे एक बैकअप में हम उसको विंड भी रख सकते हैं या कोई डीजल जनरेटर रख सकते हैं या बैकअप के तौर पे हम कुछ भी रख सकते हैं कि अगर हमारा सन अवेलेबल नहीं है तो वो बैकअप से हमें एनर्जी मिलती रहे। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग हाइब्रिड जनरेटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये यूटिलिटी कनेक्टेड लाइन टाइड या ग्रिड टाइड। ये जो है शहरों में ज़्यादातर इन्हीं टाइप के सिस्टम का यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बैटरी की बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। अगर हम सोलर में बैटरी को यूज़ करते हैं तो वो उसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ा देती है।
तो इसमें क्या होता है कि हम बैटरी न लगा के पैनल से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को सीधे अपने ग्रिड में भेज देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि बिजली को यूज़ करने के साथ साथ उसको एक बेचने का भी काम कर सकते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है बेसिकली, अगर हम सिटीज़ की बात करें। इसको हम ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं, और जिसमें हम बैकअप यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं, उसको हम ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ये स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम दिखाया गया है जिसमें बैटरीज और एसी लोड यूज़ किया गया है। तो ये हम इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको इंडिया का सोलर पोटेंशियल, जो इसमें बहुत ज़्यादा रेड दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर करीब करीब पर डे जो है वो 6 से 6.5 यूनिट जो है रेडिएशन जो है सन एनर्जी फॉल होती है। और जो पीले कलर का है वहाँ पर करीब करीब 4 से 4.5 तक होती है, और जो हल्का सा ऑरेंज दिख रहा है वहाँ पर 5 से लेकर 5.5 यूनिट तक एनर्जी फॉल होती है। तो इंडिया, हम लकी हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी सोलर जो है एनर्जी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर हम सन एनर्जी की बात करें तो सन जो एनर्जी है वो दिन के समय 1 मीटर स्क्वायर एरिया में करीब करीब 1000 वॉट की पावर फॉल होती है। तो इसका हम हार्नेस करके इससे हम अपनी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे जो है प्रायोरिटी भी बनता जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो ये हमारा आज का सेशन था। हमने इस सेशन से छोटे से 3 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जिसको आप जो है मैसेज बॉक्स में जाके आंसर देंगे, और बहुत आसान से हैं। और जो ही इसका सही आंसर सबसे पहले देगा वो हमारे आज के लिए व्यूअर ऑफ द सेशन होगा। तो हम ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डे लेंथ अकर इन विच मंथ ऑफ फॉर साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी साउदर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो किस महीने में दिन सबसे छोटा होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा सिस्टम जो है वो डिफ्यूज रेडिएशन यानी क्लाउडी सेशन में भी काम कर सकता है, फ्लैट प्लेट या पैराबोलॉइड कलेक्टर, इन दो में से कौन सा सिस्टम जो है वो डायरेक्ट अगर रेडिएशन नहीं आ रहा है, सन रेडिएशन नहीं, डिफ्यूज है, क्लाउडी सीजन है, तब भी वो काम करता रहेगा। थर्ड है, नेम द सिस्टम विच कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 क्वेश्चन हम आप लोग के आंसर्स देखेंगे, तो एक कॉमा करके आप लोग एक साथ आंसर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी कि आपने हम हाँ सभी को एड्रेस किया, एंड थैंक्स अ लॉट। सो तिवारी जी ने जो है हम सभी ऑडियंसेस को एंगेज रखने के लिए, जब तक जो है वो इंटरेक्टिव सेशन जो कि फॉलो कर रहा है उसमें अपने व्यूअर्स के सवालों के जवाब जब तक जो है वो देते हैं, तब तक आप सभी के पास समय है। Until our esteemed guest for the day answers the questions that have been posed over the different media platforms, say Facebook, say email, and over WhatsApp circles of our Sky Foundation, BIPNet, and all. So until then, you have got the time. The questions are crystal clear over the screen. That is the shortest day length occurring in which month of the southern hemisphere. Second, which type of system can be worked in the diffused radiation in the cloudy season, flat plate collector or paraboloid collector. And last but not least, name the system which converts sunlight directly into the electricity. So the forum is open to you all. And until and unless you are answering and you are trying to deciphering, but yes, I take it for granted that you are not cheating by taking the help of Google. मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप गूगल की मदद से जो है हमारे आज के वक्ता को चीट करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं इंटरेक्टिव सेशन के लिए वेलकम करता हूं। अगर हमारे आज के गेस्ट जो है परमिशन दें तिवारी जी, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हमको ईमेल और फेसबुक के प्लेटफॉर्म से अभी प्राप्त हुए हैं, तो उनसे मैं उनकी जानकारी उनसे चाहूंगा। तिवारी जी, क्या आप रेडी हैं इंटरेक्टिव सेशन के लिए? ओके सर, हम रेडी हैं, और हम जो आंसर्स हैं इसका हम देख रहे हैं। तो सबसे जो पहले जो आंसर दिया है वो उत्तम जी ने जी, दिया है। तो हमारे चलिए इस सेशन उत्तम में जी, जो है सबसे पहले आंसर करने वाले उत्तम जी हैं। उत्तम जी आपको बहुत बहुत जो है मैं साधुवाद देता हूं कि आपने जो है हमारी बात खत्म होने से पहले ही अर्जुन की भांति जो है लक्ष्य का भेदन आपने किया, लेकिन इससे बाकियों को हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जो है जारी रख सकते हैं। सो तिवारी जी, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू पोज यू is being sent over email by Mr. R. Siddhaiya from Vijayanagar. He has asked, R. Siddhaiya ji ने पूछा है कि dear speaker, you have talked about हम्म। different circles of 45 degree, 0 degree, 60 degree, 80 degree. What about the circle at 90 degree? जब आपने सूरज के सर्किल्स का जिक्र किया था, 0 डिग्री का बताया था, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो अगर 90 डिग्री पे सर्किल होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो वो किस तरीके के सर्किल्स जो हैं आपके इमेजिनेशन में प्लॉट होंगे? और तिवारी जी, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस सवाल के जवाब को आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में रखिएगा कि हमारा जो सवाल पूछने वाला व्यक्ति है वो विजयनगर से आते हैं। ओवर टू यू। ओके,
So actually we have drawn different types of circle, but you observe that no circle is complete. तो यहाँ पर कोई भी सर्किल कंप्लीट नहीं था किसी भी लैटिट्यूड के लिए. बट इफ वी ड्रॉ फॉर द 90 डिग्री लैटिट्यूड, द सन पाथ इज टोटली सर्कुलर. मीन्स आपको सूरज आसमान में गोल गोल घूमता दिखाई देगा, जिसका क्या होगा, धीरे धीरे जिसकी रेडियस ऑफ द मूविंग ऑफ सन इज इंक्रीजिंग. तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी और वो हमारी अर्थ की जो उसमें है, जो सन पाथ है, उससे बाहर चला जाएगा. सो आंसर इसका ये है कि सन पाथ इज परफेक्टली सर्कुलर. मींस आपको स्काई में सन जो है वो गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है. थैंक यू सर. दूसरा क्वेश्चन जो है यशपाल जी जो है कर रहे हैं राजस्थान से, बीकानेर से, और उनका सवाल है कि how solar power is going to compete with the other power resources like hydropower, thermal power, and what are the chances of the feasibility of solar power in India? अर्थात आज के परिदृश्य में यदि देखा जाए, इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो, सौर ऊर्जा जो है किस तरीके से आपको दिख रहा है कि किस तरीके से चुनौती दे सकती है, या ये कह सकती है कि उनके साथ कंपटीशन कर सकती है, जो हमारी जल जनित ऊर्जा है, जो हमारी कोयला जनित ऊर्जा है, या जो गैसीय गैसीय समीकरणों से जो हमारी ऊर्जा निकलती है, तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा के मुकाबले आज के परिदृश्य में सोलर पावर कहाँ पर खड़ी है, और भविष्य में सौर ऊर्जा का भविष्य आप नीतिगत तरीकों से कैसे देखते हैं, तिवारी जी? असल में सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है. तो अगर हम देखें तो हमारे डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, बस उसके लिए हमको बांध बनाना पड़ता है. तो कई जगह क्या होता है, गांव वाले एग्री नहीं होते हैं, कि उनको लगता है कि ये उनको जो है शिफ्ट कर देगा वहां से. तो हम बेसिकली हाइड्रो हर जगह नहीं लगा सकते, और उसके लिए काफ़ी लार्ज स्केल पे खर्चा भी होता है स्टार्टिंग में. बाद में वो जरूर सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो इसलिए हम उसको नहीं यूज़ कर सकते उतना ज़्यादा बड़े लेवल पे. विंड की बात करें तो विंड हमारे हर जगह अवेलेबल नहीं, कोस्टल एरियाज़ में विंड ज़्यादा अवेलेबल है. तो कोस्टल एरियाज़ में विंड का काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन हम उसको पूरे इंडिया में अगर देखें तो सिर्फ सोलर रेडिएशन है जो हमें हर जगह मिलता है. हर जगह हम सूरज की रोशनी को देख सकते हैं, और उसमें भी हम सोलर पीवी सिस्टम्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि एरिया पे डिपेंड करता है, बट अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हम सोलर पैनल्स की तरफ, सोलर पीवी की तरफ जाएंगे. ओके. धन्यवाद, धन्यवाद तिवारी जी. और यशपाल जी, मैं उम्मीद रखता हूं कि बीकानेर राजस्थान जिस क्षेत्र से आप आते हैं, वो एक सौर ऊर्जा का अपने आप में एक हब बन सकता है. आप स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोगों के सामने. तो उम्मीद है कि आप जो है अपने सवाल से सेटिस्फाइड होंगे, आप जहां भी हम लोगों को सुन रहे हो. और चूंकि ईमेल से मुझको अन्य सवाल भी मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे कुछ लाइव ऑडियंसेस भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन लाइव ऑडियंसेस का सम्मान करते हुए जो कि इस टॉक में हमारे साथ हैं, तो उनके सवालों को अब मैं आपके सामने रख रहा हूं. जैसा कि तिवारी जी आप चैट बॉक्स में देख सकते होंगे, उत्तम कुमार सिंह जी ने सबसे पहला प्रश्न किया है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग फ्रॉम उत्तम कुमार सिंह दैट सर, amidst the lockdown period, लॉकडाउन के इस दौर में, हाउ कैन वी थिंक फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन फ्यूचर? सौर ऊर्जा का भविष्य जो है आप किस तरीके से देखते हैं? लॉकडाउन की पीरियड में हम किस तरीके से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं? और आपका थॉट बताइए, आपके विचार रखिए कि यदि सौर ऊर्जा जो है मेन प्लेयर बनती है, तो फ्यूचर पावर ग्रिड में जो है आप सौर ऊर्जा को कहां पर देखते हैं अपने विचारों में? ओवर टू यू सर. तो लॉकडाउन में वैसे अगर हम नए सिस्टम की कोई बात करें तो अभी नया सिस्टम तो सब बंद है, नहीं लग सकता. जिन्होंने पहले लगा के रखा हुआ है वो लॉकडाउन में, जैसे हमारे यहाँ भी सोलर लगा हुआ है, तो जितना भी आंधी और तूफान आ जाता है तो लाइट चली जाती है, बट अगर आपके यहाँ इन्वर्टर भी लगा है तो वो भी कुछ वक्त तक आपका साथ देता है. लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम लगा है, हम चाहें उससे अगर धूप निकल रही है तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी बिजली ना आए, फिर भी हम सारे घर की बिजली, लाइट, पंखे, टीवी आसानी से उससे चला लेते हैं. तो जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, आपके पास खुद की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है. सन आपसे कोई नहीं छीन सकता, सन आपसे कोई नहीं छीन सकता. आपको अगर आपने डीजल जनरेटर लगाया तो उसके लिए भी आपको डीजल नहीं मिले, हो सकता है ऐसी कभी कभी सिचुएशन आ जाए यार, लेकिन सन जो है वो हमेशा आपको मिलेगा और आप अपने सिस्टम को रन कर सकते हैं. तो लॉकडाउन पीरियड में या कोई भी पीरियड है, सोलर एनर्जी हमेशा बहुत ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगी. ओके. थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी. और आपकी इसी शब्द से कि सूरज को जो है हमसे कोई नहीं छीन सकता, नो बडी कैन स्नैच सन फ्रॉम अस, एंड सो द सोलर एनर्जी इज ऑलवेज अवेलेबल टू अस. आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू वन क्वेश्चन फ्रॉम द फेसबुक पेज, द न्यू मीडिया दैट ओवर विच वी आर पॉपुलराइजिंग अवर टॉक. फेसबुक पेज से हमको एक सवाल मिला है
कि शायद उन्होंने जो है आपकी टॉक पूरी तरीके से नहीं सुनी, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया फॉर सोलर एनर्जी, और हाउ इन द सीजन ऑफ मानसून, बिकॉज इफ फॉर 4 months we are having the monsoon, how can we tap the solar potential if we take a permanent disconnection? उन्होंने लिखा है कि if I take permanent disconnection from the electricity board and there is a season of monsoon, how can I utilize the solar energy when sun is not directly seen? Over to you, Tiwari ji. तो असल में हम जब भी सिस्टम लगवाते हैं तो हम वहाँ पर नंबर ऑफ ऑटोनॉमी डेज लेके चलते हैं। तो अगर आपने जैसे सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ इतना इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं होता है, लेकिन गांव में क्या है, जैसे आपको नंबर ऑफ ऑटोनॉमी सेट करनी होती है, आपको 2 ऑटोनॉमी 2 दिन की चाहिए, 3 दिन की चाहिए, 4 दिन की चाहिए। तो अगर आप 4 नंबर ऑफ ऑटोनॉमी डेज के लिए अपना बैकअप तैयार रखते हैं, बैटरी बैकअप जो है रखते हैं, तो आप 4 दिन तक भी अगर सन ना निकले तो भी आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं आसानी से। और हमें लगता है 4 दिन में सन निकल ही आता है। इतना लंबा सीज़न, अगर मान लिया इससे भी ज़्यादा लंबा सीज़न है तो फिर तो इसमें मतलब नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, 4 दिन की अगर आपने ऑटोनॉमी लेके रखी है तो आपका सिस्टम 4 दिन तक आसानी से चल सकता है। और बाकी सिटीज़ में हम लोग जो ग्रिड टाइट है जिसमें हम बैकअप नहीं यूज़ करते हैं, तो सिटीज़ में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं होता है। तो सोलर जो है वो आपका अगर नहीं भी है तो जैसे ही वो अवेलेबल होगा वो यूनिट्स आपकी जनरेट करने लगेगा और वो आप ग्रिड में बेच सकते हैं। तो ओवर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। उम्मीद रखता हूं कि जैन साहब जो हैं आप सेटिस्फाइड होंगे अपने जवाब से जो हमारे स्पीकर का है। एक सवाल, यूनिक सवाल, क्योंकि ये पहला सवाल है जो कि डायरेक्टली एस्ट्रोनॉमी के किसी क्षेत्र से और सोलर एनर्जी को लिंक कर रहा है। क्षितिज श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, कैन सोलर एनर्जी बी यूज्ड इन रॉकेट प्रोपल्जन? आप सोलर एनर्जी को रॉकेट प्रोपल्जन में यूज कर सकते हैं? ओवर टू यू। सोलर एनर्जी पे अभी आप लोग ने न्यूज़ सुनी होगी कि एक प्लेन चला था, ठीक है, तो उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। तो अभी अगर हम देखें तो रॉकेट प्रपोल्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और उसके बाद उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम नहीं ला सकते। लेकिन जो हमारी सैटेलाइट्स मूव करती हैं वो सोलर पैनल से ही करती हैं। तो जब वो रॉकेट हमारी सैटेलाइट्स को ऊपर छोड़ता है तो उसके बाद उसमें से जो सैटेलाइट होती है वो हमारी सोलर पैनल्स की मदद से ही सन से एनर्जी लेके वो अपने जो फंक्शंस को जारी रखती है। लेकिन रॉकेट प्रपोल्शन की अगर हम बात करें तो अभी इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी को वो लेके जाता है उससे दूर, तो इसमें यूज़ कर पाना अभी फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना आसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी इतने कैंडिड रिप्लाई के लिए कि आप स्वयं सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने साफ गोई से चीजों को स्वीकार किया। अगला सवाल हम लेते हैं श्री प्रताप सिंह चुनावट, डीआईजी एसएसबी जो कि मौजूद हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि हाउ टू गेट ए सोलर कुकर फॉर कम्युनिटी कुकिंग। आप जैसे कम्युनिटी लेवल पे अगर आप जो है किसी चीज को पकाना चाहते हैं तो उसके लिए सोलर कुकर का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, और उतने स्तर का, उतने वृहद स्तर का सोलर कुकर आपको प्राप्त भी कैसे होगा? ओवर टू यू तिवारी जी। हमने आपको जैसे एक शेफलर कुकर का दिखाया था जिसमें हम सन के डायरेक्ट में ना आके या फिर लाइन फोकसिंग वाला था, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं या ही जो धूप है उसको अंदर भेजते हैं। तो आपका जो सवाल है कि हम लार्ज स्केल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो एक फ़ोटोज हमने दिखाई थी जिसमें शेफलर जो है रिएक्टर रखा हुआ था। तो वो रियल में कम्युनिटी लेवल पे ही बनाता है। ये इंडिया में चल भी रहा है, गुजरात में बड़ोदरा में मुनि सेवा आश्रम है, वहाँ पर बहुत बड़े स्केल में सोलर कुकर से ही जो है खाना बनता है। शेफलर डिस्क की मदद से जो है हम लोग हीट को जो है गर्म करते हैं पानी को, या फिर डायरेक्ट हम लोग अपने यूटेंसिल पे डालते हैं कुकिंग पॉट पे। तो अगर आप बेहतर से इसको देखना चाहते हैं तो तभी आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा, कोई भी वहाँ पे जा सकता है। तो किस तरह से कम्युनिटी लेवल पे बहुत बड़े वहाँ पे 20,000 के ऊपर लोगों का खाना उसी से बनता है। और शिरडी में भी, शिरडी वाले में जो मंदिर में अभी भी वहाँ पे भी हमें सुनने में आया कि इंस्टॉल हुआ है, तो वहाँ भी बहुत बड़े स्केल पर खाना जो है वो सोलर थर्मल से ही बनता है। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। प्रताप सिंह सर ने एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री सवाल भी पूछा था कि मैन्युफैक्चरर के बारे में। तो प्रताप सर, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा अपने वक्ता का, आप उनसे डिटेल लेवल पर इन चीजों का सवाल कर सकते हैं, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट, ए गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल। सो आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको तिवारी जी से मिल जाएंगे। मैं उनका जो है ईमेल है, और अगर आपको कुछ ज्यादा वृहद जानकारी चाहिए तो स्काई फाउंडेशन का जो मेल है admin@skyfoundation.org, स्काई और फाउंडेशन के बीच में एक डैश का सिंबल है, तो उसको जो है आप अगर लॉग इन करते हैं, अपने सवाल को पुटअप करते हैं, तो हमारे फाउंडेशन की तरफ से और तिवारी जी की तरफ से आपको सवालों के पूर्ण जवाब जो है आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यू करते हुए मैं 2 सवालों को मिलाना चाहूंगा। शुभम शर्मा जी
जो है सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 1 महीने तक सोलर एनर्जी प्रयोग में लाई गई तो रेगुलर बिल में कितना डिफरेंस होगा। और उत्तम जी ने आपके उसी प्लेन से रिलेटेड एक सवाल पूछा था कि सोलर एनर्जी के बेसिस पे जो प्लेन उड़ा था, क्या वो नॉर्मल प्लेन साधारण प्लेन के जितना ही था। तो ये दो अलग अलग सवाल हैं, लेकिन मैंने कंबाइन कर दिया क्योंकि हमारे आपके सामने समय की थोड़ी बाध्यता है। ओवर टू यू सर। जो प्लेन उड़ा था वो साधारण वैसा प्लेन नहीं था, एक टेस्टिंग प्लेन था छोटा सा। और एक क्वेश्चन जो उन्होंने और किया है कि हम इसको क्या क्या था सर, एक बार बताइएगा। बिल में कितना ये फर्क आएगा, शुभम शर्मा जी का जी, फर्क बिल था, में आप सर। नॉर्मल ओके। इलेक्ट्रिसिटी बिल और सोलर एनर्जी में। हाँ, तो बिल में हम आपको सबसे आसान सा उदाहरण देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं लखनऊ लोकेशन की, तो यहाँ पर एक दिन में जो सन रेडिएशन फॉल होता है वो 5 यूनिट होती है करीब। ठीक है, तो 5 यूनिट ही फॉल होती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। तो अगर आपका जो सोलर पैनल है, तो वो जो इफिशियंसी होती है उसकी, अगर हम उसको, वैसे तो 16% होती है, हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको 20% मान लेते हैं। तो 20% का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर के सोलर पैनल से आप 1 यूनिट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारा सिस्टम है, जैसे जो हमारा 600 वॉट का सिस्टम है या 1000 वॉट का सिस्टम है, वो करीब 3 से 4 मीटर स्क्वायर एरिया का होता है। यानी 1 किलोवाट के सिस्टम से या 600 वॉट, आधे किलोवाट के सिस्टम से आप आसानी से 2 से 4 यूनिट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप आसानी से यूज करके कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का कॉस्ट जो भी आपके यहाँ है, जितना भी मंथ में आपका सोलर पैनल जनरेट करता है, तो उससे आप काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट डायरेक्ट आंसर नहीं है। ये सिंपली आपके अवेलेबल जो रेडिएशन है, या फिर जो आपका पैनल कितने एरिया का है, उस हिसाब से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो सिस्टम यूज होते हैं वो ग्रिड टाइड होते हैं। तो जैसे जो भी यूनिट आपकी जनरेट हो रही है वो सब की सब आपके ग्रिड में, जैसे मान लिया कि आपने 500 यूनिट बिजली यूज करी, ठीक है, और सोलर ने आपकी 200 यूनिट बिजली बनाई है, तो आप देख सकते हैं आपसे बिल सिर्फ 300 यूनिट का लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। अब जैसे जो है हम बिल्कुल अपने अंत में पहुंच रहे हैं प्रेजेंटेशन के, तो आखिरी 3 सवाल जो अब मैं लूंगा, और इन 3 सवालों के बाद जो है मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बाकी के सवाल हों, अलहदा सवाल हों, तो उनको जो है हमारे स्काई फाउंडेशन admin@skyfoundation.org पे आप मेल करें, और आपको हमारे एक्सपर्ट जो सेटिस्फाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुमित शेखर जी। सुमित शेखर जी पूछते हैं, हाउ कैन सोलर पैनल बी मेड कॉस्ट एफिशिएंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोलर पावर को कॉस्ट एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, और इफ नॉट, हाउ कैन बी सीट एज ए फ्यूचर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि बाकी जो ऊर्जा के स्रोत हैं काफी सस्ते हैं, सस्ती ऊर्जा है। तो अगर जो है जैसे पैनल्स हैं सस्ते नहीं होते हैं, तो क्या ये फ्यूचर ऑल्टरनेटिव बन सकता है प्रैक्टिकली। ओवर टू यू तिवारी जी। असल में जो आप ये कह रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव, ये ऑलरेडी पहले से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग में सोलर पैनल आए थे तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, ये 80 रुपये 100 रुपये पर वॉट में इन जो है मिलते थे। अब इनकी कीमत जो है वो 40 रुपये वॉट 35 रुपये वॉट में आ चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 डेढ़ साल से काफ़ी ज़्यादा सोलर का स्कोप आ गया, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 3 से 4 रुपये यूनिट तक में आ चुकी है। तो ये ऑलरेडी आपकी जो सरकारी बिजली है, ग्रिड है वाली बिजली है, उससे ऑलरेडी ये सस्ता हो चुका है। तो इसको लगवाने में तो आप लोग आसानी से, थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आप आसानी से इससे बहुत बड़े लेवल पे बिजली को बचा सकते हैं। ओके। Thank you, Tiwari ji and Shubhit Shekhar ji. I suppose that your query would have been satisfied, and if not, then you can mail us to you, and then we can reply you in detail with the proper technical details also. So ये सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ तिवारी जी, मैं इसका शुरू से इंतजार कर रहा था, लेकिन आते आते इसने बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी समय पर आया। तो हमारे जो हैं मिस्टर अभिनव तिवारी जी जो हैं पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं कि सर, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन हाउ the greenhouse effect is utilized in the solar energy, and as an addendum, how the solar energy can affect the ozone layer depletion। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का हम किस तरीके से सोलर और सौर ऊर्जा के जनरेशन में यूज करते हैं, और क्या सौर ऊर्जा का यूज करने से ओजोन लेयर में जो क्षरण होता है उसमें कुछ कमी आ सकती है। ओवर टू यू तिवारी जी। बिल्कुल। इसमें जो अभी जो हमारे यहाँ लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक 1 लाख मेगावाट एनर्जी जो है वो सोलर से जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑब्वियसली ये एनर्जी जो हम लोग सोलर से है, ये फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर रही है। फॉसिल फ्यूल में हमारी बहुत खतरनाक गैसेस निकलती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो इससे हम ऑब्वियसली पॉल्यूशन को अपने सेव कर सकते हैं।
और एक इसीलिए इसको कहा ही जाता है क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी। थैंक यू वेरी वेरी मच तिवारी जी। और एक आखिरी सवाल, शायद दो सवाल हैं तो एक सवाल मैं लेता हूं शुभान राज जी की तरफ से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी जनरेटेड बाय सोलर पैनल प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट एंड वन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? मतलब जो सौर ऊर्जा, अगर कोई जैसे मान लीजिए कि उपग्रह जो हमने प्रक्षेपित किया है जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है, उसके ऊपर जो सोलर पैनल लगा हुआ है और एक जो पृथ्वी की सतह पर जो सोलर पैनल है, तो दोनों के बीच में, ऊर्जा के बीच में क्या फर्क आप देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से? तिवारी जी, ओवर टू यू। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो इसमें जो हमारा सोलर पैनल है, जो सन से रेडिएशन आता है, तो उस एक सोलर कांस्टेंट होता है। तो सोलर कांस्टेंट मींस अर्थ के यूनिट स्क्वायर एरिया में डायरेक्टली कितनी सन एनर्जी फॉल हो रही है। तो ये जो स्पेस में इसकी जो वैल्यू होती है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर, वो 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में आता है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से या क्लाउड की वजह से ये घटते घटते बहुत कम रह जाती है। तो ऑब्वियसली जब रेडिएशन कम फॉल होगा तो एनर्जी भी कम जनरेट होगी। लेकिन जो हमारे ऑर्बिट में अगर हम इसको लगाएंगे तो वहां पर हमको डायरेक्ट रेडिएशन मिलेगा, नो डिफ्यूज रेडिएशन। तो वहां पर ये काफी अच्छे से और काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि वी दैट इज द अप्रोच ऑफ द टाइम, द एपोक ऑफ द टाइम इज कमिंग टू 1 hour. It is already 7 minutes past 8. So the last question that I am going to take from Subham Sharma, with all due respect to the other questions ranging from our audience, उन्होंने थोड़ा मॉनिटरी कॉस्ट की बात करी। शर्मा जी पूछ रहे हैं, अगर आप एग्जैक्ट ना बता पाए तो आप अप्रोक्सीमेट बताएं। इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, 1 minute पैनल, वन मीटर पैनल कितने रुपीस का होगा? दैट इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए सोलर पैनल ऑफ अबाउट 1 मीटर एंड फीजिबिलिटी? ओवर टू यू। अगर हम पैनल की बात करें तो हम मीटर स्क्वायर में बात करेंगे, एरिया में बात करेंगे। ठीक है। तो जो पैनल जो हमारा 300 वॉट का पैनल होता है वो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है, यानी 2 मीटर स्क्वायर एरिया का होता है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो करीब करीब, अगर हम 300 वॉट को 30 रुपए वॉट या 40 रुपए वॉट जो भी हमारा रेट लग रहा है, तो करीब करीब 10,000 से 9-10,000 से लेके 11,000 का हमारा 300 वॉट का पैनल आता है, डिपेंड्स अपॉन कंपनी। तो नॉर्मल अगर कोई कंपनी जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो 10,000 में 300 वॉट का आएगा। और इसमें आप केबल कॉस्ट या और भी कॉस्ट एस्टिमेशन है। असल में अगर ऐसा है, इसमें हम देखेंगे तो कई चीज़ें और कॉस्ट जुड़ जाते हैं, बट बेसिकली अगर हम सिर्फ पैनल की बात करें तो 2 मीटर स्क्वायर का जो पैनल होता है वो करीब करीब 300 वॉट का होता है और 30 रुपए से 40 रुपए कॉस्ट होती है। तो आप मैथमेटिक्स से आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें क्या कॉस्ट होगा। ओके। सो थैंक्स अ लॉट, वेरी वेरी मच तिवारी जी। मैं आपका जो है हम सभी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है हम सभी लोगों को अपने ज्ञान से आलोकित किया। और आई वुड जस्ट ऑल्सो लाइक टू मेक इट क्लियर टू ऑल द ऑडियंसेस, एंड दैट इज the motto of the day on the technology day is the clean energy and green energy. And again, I would like to reiterate the sentence of Tiwari ji, that is, nobody in the over the earth has got the capability or the guts to snatch sun from you. कोई भी, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि वो सूरज आपसे छीन सके। हाँ, उसके ऊपर क्लाउड ढक सकता है, उसकी रोशनी मध्यम पड़ सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल जो है उसको सामने आना ही पड़ेगा, और वो आएगा ही। और हमारी जीवन शैली जो है आज जो हम देख रहे हैं, जो ऊर्जा अनेकानेक रूपों में हम सभी के सामने प्रवाहित हो रही है, द डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ द एनर्जी दैट इज फ्लोइंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस इज थैंक्स टू सन। सो थैंक्स अ लॉट तिवारी जी फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन, and I would just like to make a few announcements also, that tomorrow and day after tomorrow are the penultimate and the ultimate days for our talk. And tomorrow we will be going again into the history of astronomy, RK Astronomy Talk Part 2, and there will be an experimentational talk also on that the speaker for the day for tomorrow will be taking regarding the zero shadow day, another phenomena and experimental approach in the context of the history of astronomy. And day after tomorrow there again will be a presentation over the night sky watching for the month of May. आने वाले 2 दिनों में आप सुनने वाले हैं आरके एस्ट्रोनॉमी का एक और लेक्चर, जो कि पार्ट 2 की टॉक है, जो कि जल्दी होने वाली है। और उसी में आप जीरो शेडो डे, जिसमें आपको शून्य छाया दिवस के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट है, राष्ट्रीय स्तर का एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है विज्ञान प्रसार की तरफ से, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस महायज्ञ जो विज्ञान प्रसार की संस्था कर रही है उसमें एक एक आहुति अपनी तरफ से अवश्य दें। यू ऑल्सो शुड बिकम ए पार्टी टू दैट ग्रैंड celebration of the zero shadow day with respect to Pune by Vigyan Prasar, and become a part in calculating the circumference of the earth. चाहते हैं कि आप अर्थ की परिधि, हमारी ये दिली इच्छा, हम सभी की दिली इच्छा ये है कि आप पृथ्वी की परिधि
का जो है हिस्सा बने, पृथ्वी की परिधि मापने के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, तो उसके बारे में आप सभी को कल जानकारी दी जाएगी। और थैंक्स अ लॉट तिवारी जी, जो आपने सोलर फ्यूजन से लेकर के और जो सोलर कुकर और अन्य फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी की जो आपने सौर ऊर्जा की यात्रा जो हम सभी लोगों के समक्ष कराई हम सभी को, उसके लिए मैं आपका स्काई फाउंडेशन में सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूं। अब बिना समय गंवाए अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं वुमेन लेड साइंस क्लब की प्रणेता, उसकी संस्थापक और उसकी कोऑर्डिनेटर मिस श्वेता श्रीवास्तव को, कि वो प्लेटफॉर्म पे आए और वोट ऑफ थैंक्स, एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हम सभी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आज के वक्ता और सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से दें। श्वेता जी, ओवर टू यू, अगली आवाज आप। Thank you so much, sir. Hello, everyone. Myself, Sweta Srivastav, President of WLS. I would like to thank Mr. Anurag for an enlightening and informative presentation on the solar radiations and its different usage. We appreciate having this area clarified so well. You beautifully explained how to generate electricity with different systems, and the trivia questions were just amazing, which engaged our audience's attention. I'm sure audience must have loved your presentation. There were certain things which audience may not be knowing earlier related to solar power, but now these concepts must be definitely cleared. I have a small token of our appreciation here for you, Mr. Tiwari, on behalf of all the WIPNET clubs. Please accept it with our sincere thanks. Now, I would like to thank my esteemed audiences. Thanks everyone for joining. See you tomorrow, same time and same place. Stay tuned with us. Good night. So before we take the final farewell, I take it as an opportunity on behalf of the combined umbrella of WIPNET clubs, Sky Foundation and EduSTEM with a great message. Stay safe, stay home, stay healthy, enjoy the night sky observations, and use as far as most possible clean energy, green energy, and the farewell wishes of a very, very happy National Technology Day. With this, good night to you all.